Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra Radhe. Jayo Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Baladeva, Jai Subhadra. Jai 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 Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद से पढ़ रहे हैं. वी रीडिंग फ्रॉम 5th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, चैप्टर 14, 14वां अध्याय, श्लोका 23. Is that correct? Oh, chapter 2. I'm sorry. It's the wrong chapter. Which is the verse now? Chapter? हाँ, इसमें वो गलत चैप्टर निकाल. ठीक. 5वां स्कंद 24वां अध्याय 24. इसका PDF भेज सकते हैं. चैप्टर 24, 24, कैंटो 5 और श्लोका 23, 24, 23 और 24. बलि महाराज का. Hare Krishna. Thank you. Blessings. Actually, ये जो श्लोक है ना, I think it is not poetic, but it is text. So I'm just read it and then read the translation. I will read both English and Hindi because some devotees prefer English. Yatvadgata nidhi gatanyapayena yancho lena parata swasharira vishet lokatrayo varuna pashish samprati mukta giri darya chapa vidhi iti ho vacha. When the Supreme Personality of Godhead could see no other means of taking away from Bali Maharaj, he adopted the trick of begging from him and took away all the 3 worlds. Thus only his body was left. But the Lord was not still satisfied. He arrested Bali Maharaj, bound him with ropes of Varuna, and threw him in a cave in the mountain. Hare Krishna. This is mercy. Nonetheless, although his property was taken, he was thrown in a cave. Bali Maharaj was such a great devotee that he spoke as follows. Next verse. Nunam batayam bhagavan arteshu nanishnato
योस्वाब इंद्र यस्य सुचिरो मंत्राय वत्र एकांत बृहस्पति तमतिभ्य स्वयं. Please repeat. You are not Shrutidhar. उपेन्द्रात्मनम अवाच मत शिशो न एव तदास्यमिति गंभीर वशय कालस्य मन्वंतर परिवृतम कियल लोकत्रयम् इदम्. Translation, purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Alas, how pitiable it is for Indra, the king of heaven, that although he is very learned and powerful, and although he chose Brihaspati as his prime minister to instruct him, he is completely ignorant about spiritual advancement. Brihaspati is also unintelligent because he did not properly instruct his disciple Indra. Lord Vamandev was standing at Indra's door, but King Indra, instead of begging him for an opportunity to render devotional service, engaged him in asking me for alms to gain the three worlds for his sense gratification. Hare Krishna. You should remember, once Radhesham Prabhu, Radhanath Maharaj told Radhesham Prabhu that you should not criticize Indra too much because next birth you may take in heavenly planets. And Indra is the temple president there, you know. So you may have problems in accommodation prasadam. You know. So this verse is actually indirectly criticizing Indra, but we have to be very careful. Sukadeva Goswami can do like that, but we should say, Jai Indra Prabhu ki Jai. Because for him so much Krishna did. Govardhan Leela. Sovereignty over the three worlds is very insignificant because whatever material opulence one may possess lasts only for an age of Manu, which is but a tiny fraction of endless time. मैं थोड़ा हिंदी में भी पढ़ूंगा because some audience in the Zoom group के लिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ. श्लोक नंबर 23 है, 5वें स्कंद का 24वां अध्याय. जब भगवान वामन देव को बलि महाराज का सर्वस्व लेने की कोई युक्ति नहीं सूझी तो उन्होंने भिक्षा मांगने के बहाने तीनों लोक मांग लिए. इस प्रकार उनका शरीर मात्र बचा, किंतु भगवान फिर भी संतुष्ट नहीं हुए. सब लेने के बाद भी उन्होंने बलि महाराज को वरुण के रस्सी से बंदी बना लिया और एक पर्वत की गुफा में जाकर फेंक दिया. यद्यपि बलि महाराज का सर्वस्व छीन लिया गया, वे उन्हें बंदी बनाकर गुफा में डाल दिया गया, तो भी महान भक्त होने के कारण बलि महाराज क्या बोले? उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया भगवान से. बलि महाराज बोले, धिक्कार है, स्वर्ग का राजा इंद्र कितना दयनीय अवस्था में है कि इतना विद्वान है, इतना शक्तिमान होने पर भी अब बृहस्पति सलाह लेता है, बृहस्पति उसके प्रधानमंत्री हैं, फिर भी उसको आध्यात्मिक उन्नति के विषय में बिल्कुल अज्ञानी है. बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है. हरे कृष्ण. ऐसे बलि महाराज बोल सकते हैं ऐसे ना. बृहस्पति जो डेमीगॉड्स के गुरु हैं वो भी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य इंद्र को उचित शिक्षा नहीं दी. भगवान वामन देव इंद्र के दरवाजे पर खड़े हुए थे, किंतु उनसे इंद्र ने दिव्य सेवा नहीं मांगी, बल्कि क्या मांगा कि मेरे दरवाजे पर अपने इंद्रिय भोग के लिए 3 लोकों की प्राप्ति के लिए भिक्षा हेतु आपको भेजा. तीनों लोकों की प्रभुता जो है वो बिल्कुल महत्वहीन है, क्योंकि मनुष्य के पास जितना भी ऐश्वर्य क्यों न हो कि वो एक मनवंतर तक चलता रहे तो भी अनंत काल का एक क्षुद्र अंश है. very instructive verse. Purport. Bali Maharaj was so powerful that he fought with Indra and took possession of the 3 worlds. Indra was certainly advanced in knowledge, but instead of asking Vamandev for engagement in his service, he used the Lord to beg for material possessions that would be finished at the age of Manu. As age of Manu, which is the duration of Manu's life, is calculated to last for 72 Divya Yugas. And one Divya Yuga consists of 43 lakh years. No, 43 crore years. 43 crore. 43 lakhs? Yes, 43 lakhs, sorry. Therefore, the duration of Manu's life is 43 lakh into 72. Anybody of you have studied engineering? क्या होता है?
very small, 3096000000. That is the duration of Manu's life. Little longer than our life. Ne? The demigods possess their material opulence only until the end of the life of Manu. Time is insurmountable. So each sentence, like recently Radhanath Maharaj was speaking in Bombay, that every sentence of Prabhupada is like a jewel. But some sentence they shine out even on the jewels. You can give a lecture for 2 hours on one sentence of Prabhupada's word. Prabhupada is saying here, time is insurmountable. That itself is the whole topic. Krishna says, I am time. Time is insurmountable. The time one is allotted, even if it millions of years, is quickly gone. And the demigods own their material possessions only within limits of time. Therefore, Bali Maharaj is lamenting that although Indra was very learned, he did not know how to use his intelligence properly. For instead of asking Vaman Dev to allow him to engage in his service, Indra used him to beg Bali Maharaj for material wealth. Although Indra was learned and his Prime Minister Brihaspati was also learned, neither of them begged to be able to render loving service to Lord Vamana Dev. Therefore, Bali Maharaj is lamenting for Indra. इसका हिंदी में अनुवाद है कि बलि महाराज इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इंद्र से युद्ध करके तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। यह निश्चित ही बुद्धिमान थे। फिर भी उसने भगवान वामन देव से उनकी भक्ति में संलग्न होने की बात न कहकर ऐसे धन धान्य की याचना की कि एक मनवंतर में समाप्त हो जाएंगे। ये इंद्र के बारे में बोला गया। मनवंतर, मनु की आयु 72 युग की है। एक युग होता है 43 लाख साल। मनु का जीवन होता है 30 करोड़ 96 लाख वर्ष। देवताओं का भौतिक ऐश्वर्य एक मनवंतर तक चलता है। काल बहुत दुस्तर है। काल लाखों साल तक भी बहुत जल्दी बीत जाता है और देवताओं का ऐश्वर्य काल की सीमाओं के भीतर ही रहता है। तो बलि महाराज को दुख हो रहा है कि मैं इतना विद्वान होने पर भी इंद्र अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि वामन देव से भगवान की भक्ति नहीं मांगी, बल्कि क्या मांगा? इंद्र ने भगवान का उपयोग किया कि मेरे लिए जाके भौतिक संपत्ति मांग कर लिया। भगवान को बोला कि आप लेके आए। यद्यपि इंद्र बुद्धिमान था, उसका प्रधानमंत्री बृहस्पति भी बुद्धिमान थे, किंतु उसमें से किसी ने भगवान वामन देव से प्रेम भक्ति नहीं मांगी। अतः बलि महाराज को इंद्र पर दया आ रही है कि क्या मांगा है ना। बहुत ही इंस्ट्रक्टिव वर्स है, वेरी इंस्ट्रक्टिव वर्स। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे। लिटिल लाउडर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स बोलूँगा क्योंकि कुछ डिवोटीज हैं जो हिंदी पसंद कर रहे हैं। और ये श्लोक जो आज श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आ रहे हैं बहुत इंस्ट्रक्टिव है। अगर हम इस श्लोक पे अगर मेडिटेट करें तो हमारी भक्ति में बहुत प्रगति हो सकती है। द एसेंस ऑफ दिस वर्स इज दैट हाउ एवरीथिंग इज टेम्पररी। हियर वी आर सीइंग दैट बली महाराज एक्चुअली, जब मुझे क्लास देने के लिए मैं वर्स बताया गया युगल श्याम प्रभु जी ने, आई बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम हिम, क्योंकि 2 बार मैं देने वाला था क्लास। एक बार फिर राधा रास बिहारी से कॉल आ गया, फिर एक बार कहीं से। प्रभु इज़ वेरी टॉलरेंट एंड आई होप आई कैन इम्प्रूव। कल रात को मैं खराड़ी से आया तो बहुत लेट हो गया था, तब फिर सुबह बहुत थका हुआ था। फिर मेरे को याद है नहीं आज तो देना ही है, अलाइव और डेड मैं ऐसा पे बैठ जाऊँगा। भगवान की शक्ति से मैं गया, जब करके आधा घंटे रेस्ट करके आया। मेरा प्रिपरेशन ये था कि आधा घंटा शवासन किया मैंने। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू प्लीज वैष्णवस वेदर यंगर और ओल्डर। एक्चुअली मैं राधानाथ महाराज का लेक्चर सुन रहा था 2 दिन पहले। महाराज बोलते हैं जनरली लोग सोचते हैं वैष्णव अपराध मतलब खाली सीनियर के प्रति अपराध, इसलिए लोग सीनियर से अपराध नहीं करते और जूनियर के प्रति कर बैठते। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो इवन महाराज बोलते हैं इवन नॉन डिवोटिव इफ यू ऑफेंड कर्मी ऑल्सो यू कैन फॉल डाउन। Yes, we don't know। अभी मुझे लगता है कि कोई यंगर है व्यक्ति, है ना, जैसे श्री राम प्रभु हैं, इस बहुत मेरे को हेल्प करते हैं, तो ऐसा लगता है प्रभु ये तो जूनियर है, इसका जब इसका तो अभी दीक्षा भी नहीं हुआ है। जो हो सकता है पूरा जन्म में प्रभुपाद डिसाइपल रहे हूँ, है ना। आपका बर्थ कौन से साल में हुआ? 89। तो 87 में 88 में किसने शरीर छोड़ा पूरा देखना चाहिए, है ना। कोई महाराज होंगे, कोई जीबीसी होंगे। नहीं, इट्स अ फैक्ट एक्चुअली। Because see, most of us will not finish bhakti in one life. That is, I mean, we want to. Most of us, Prabhupada बोले 75% तो नहीं हो। तो क्या होगा सपोज आई डोंट फिनिश भक्ति, तो क्या होगा सर्वलक्षण प्रभु? मेरी भक्ति पूरी नहीं हो तो क्या होगा? अगले जन्म में एटलीस्ट ह्यूमन बॉडी तो मिलेगा ही। इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, नहीं इतनी बार राजभोग खाया है। यहाँ पे मैं पढ़ रहा था अभी, बहुत इनकरेजिंग सेंटेंस है ना यहाँ पे पीछे। यू सॉ दैट सेंटेंस, महाप्रसाद स्टॉल के पास लिखा है कि हैज एनीबॉडी रेड दैट? व्हाट इज दैट? रेड? हाँ, बाकी प्रभु जी को कोई श्लोक याद नहीं है, लेकिन ये पूरा ये फिनिश योर पीडीसी कोर्स, ये स्टार्टेड, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड द एसेंस, है ना। Now you have to just pass time for 2 years, but essence को इम्पोर्टेंट है। ये 6 महीने फास्टिंग करने का फल है वो एक बार महाप्रसाद खाने से मिलता है। स्पेशली पीडीसी डिवोटीज को खूब प्रसाद खिलाना चाहिए ना। सर उनको आश्रम छोड़ने की भी इच्छा होगी तो याद आएगा नहीं महाप्रसाद। नहीं, आपको लग रहा है मैं जोक कर रहा हूँ, नहीं, इट्स अ फैक्ट। यू नो जयानंद प्रभु इज वेरी पावरफुल डिवोटी। जयानंद प्रभु इज फर्स्ट रथ यात्रा काट बनाने वाले, है ना। तो वो क्या करते थे मालूम है? 2 चीज़ों में बहुत श्रद्धा थी उनको। एनीबडी हर्ड दिस स्टोरी? मे में फर्स्ट वीक इट वाज क्लास वाज देयर ना। यू नो व्हाट वाज हिज 2 फेवरेट आइटम्स? होली नेम एंड महाप्रसाद। बाहर जाते थे प्रीचिंग करते, किसी को लेकर आते और उसको प्रसाद हॉल में बिठाते, उसको सर्विंग करते रहते। जब तक जो खाने के बाद कोई इच्छा ही नहीं होती बाहर जाने की, शक्ति ही नहीं रहती। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो हियर वी सी, लेकिन यहाँ पर वामन देव का गुणगान किया गया। एक्चुअली मैं शुरुआत इसलिए बोल रहा था कि मेरे को क्लास तो देना ही था, निश्चित था, और मेरे को भी कन्फर्मेशन रात को 8-9 बजे करीब आया, है ना। तब मैं क्लास में था। तो वैसे भी मैं प्रिपरेशन करता ही नहीं हूँ, आता ही नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि कृष्णानंद मतलब श्रीमद् भागवत या चैतन्य भागवत,
तो मैं सोच रहा था कि कैसे टाइम का पावर कैसे, टाइम जो है सो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे लाइफ में कौन सी घटना कब होगी ये ऊपर से देवता कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे अभी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ अपने आईब्रोज का, अपने हैंड का, अपने हाथ का, ये सब भी काल के वश में। और काल कृष्ण बोलते हैं आई एम दैट टाइम। कल मैं गौर गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रहा था, मुझे पता नहीं था आज ये श्लोक आएगा, लेकिन गौर गोविंद महाराज लेक्चर में बोलते हैं ऐसे कि कालोस्मी भरत, कृष्ण से आई एम टाइम। टाइम का इफेक्ट देखिए कितना होता है, टाइम से सब कुछ चेंज हो जाता है। नहीं अभी सोचिए आज से 25 साल पहले यहाँ पे क्या था, ये खंडर भूमि थी। नहीं, इट वॉज जस्ट लैंड, नॉट सो इम्पोर्टेंट। बरसाना नंदगांव प्रकट नहीं हुआ था, ये गोलोक सोसाइटी नहीं थी 25 ईयर्स बैक, 2001-2 किसी को पता ही नहीं था। अभी देखिए कितना चेंज हो गया। आप इधर इनफैक्ट पूना का शहर ही देखो, पिछले 10 साल में पूना में कितने चेंजेस हुए। नहीं, आईटी इंडस्ट्री के कारण ये मगरपट्टा इलाका पहले कुछ ज़्यादा था नहीं, अब मगरमच्छ आ गया, मगरपट्टा है ना और सब उस काल के मगरमच्छ में है ना। तो ये काल का प्रभाव सबसे पावरफुल है। कैसे हम जज करते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, वो काल का ही प्रभाव है। जैसे आप रेडियो एक्टिविटी से पता चलता है, केमिस्ट्री में सिखाते हैं कि कैसे काल के प्रभाव से जज कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। हमारे बॉडी को कैसे जज करते हैं, यू कैन लुक एट द फेस एंड यू कैन टेल दैट दिस पर्सन इज अप्रॉक्सीमेटली, योर एज इज व्हाट 28, व्हाट इज योर एज 26 है ना। सो little difference, mine is 59 you know, so by the face you can make out। जनरली आप देखते हो कि लोग अपनी 25 और 30-35 साल की उम्र के बीच की एक फ़ोटो अच्छी लगा के वो संभाल के रखते हैं, है ना। जस्ट वो फ़ोटो को संभाल के रखते हैं, क्योंकि बाद में फ़ोटो उतनी सुंदर नहीं लगती। पहले तो एकदम अच्छा लगता है, चबी चिक्स एप्पल की तरह, फिर 40 के बाद ड्राई फ्रूट बन जाता है। And time is so powerful. Even if you are Prime Minister of India, a President of United States, or the King of Heaven, we are all helpless against time. Nobody can do anything. Even ISKCON में GBC members भी हो, सन्यासीस भी हो, गुरु भी हो, we are all helpless. काल की शक्ति इतनी पावरफुल है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं ना 11th चैप्टर में विराट रूप, तो उसमें बताते हैं ना आई एम टाइम ऑल डिवाउरिंग, ऑल डिवाउरिंग। लेकिन एक भक्त जो है वो भगवान की शरण आने से वो काल के परे चला जाता है, बाय टेकिंग शेल्टर। व्हेन वन टेक्स शेल्टर ऑफ कृष्णा ही इज अनअफेक्टेड बाय टाइम। इसका मतलब क्या है, काल का प्रभाव तो शरीर पे हो रहा है, लेकिन उसको भगवान की शरणागति में विश्वास है और फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है। व्हेन वी गिव अप आवर बॉडी वी विल गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड देयर इज नो टाइम, टाइम इज कंस्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस। In spiritual world there is no past or future, it is all present, everything is eternal, सब कुछ शाश्वत है। तो ये बात को प्रभुपाद is so intelligent, he is using every opportunity to make us serious in devotional service। प्रभुपाद एक्चुअली आप देखो ट्रांसलेशन देखें तो ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है कि the Lord adopted the trick of begging from him and took away all the 3 worlds। इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, प्रभुपाद लीलामृत में कहानी आती है कि कैसे प्रभुपाद जब अपने फैमिली लाइफ में थे, प्रभुपाद बहुत कोशिश कर रहे थे कि इकोनॉमिकली बहुत अमीर बन जाएं, है ना। कितने सारे बिजनेस ट्राई किए उन्होंने, बट जो भी प्रभुपाद ट्राई करते वो फेल हो जाता है ना। तब प्रभुपाद जी को एक श्लोक याद आया। कौन सा श्लोक है सतीश प्रभु, यू नो दैट, यस्याहम अनुग्रामी हरिषेत धनम शने। When I show mercy to someone, I take away everything that he has। ये बड़ा विचित्र लगता है नहीं। समझो आप कोई बड़े व्यक्ति को जानते हो, लोकल लेजिस्लेटर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप क्या चाहोगे कि वो मुझे हेल्प करेगा, नहीं। जैसे हम लोग भी ISKCON में भी we take help from politicians sometimes to get some land for temple, Gurukul, we take help of, जैसे हमारे राधाकांत प्रभु जी, इन्होंने शुरू से मतलब पायनियरिंग स्टेज से हमारे ISKCON वृंदावन का गुरुकुल शुरू किया। पहले तो पुराना गुरुकुल था लेकिन जगह नहीं थी, फिर परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज और सब भक्तों के आशीर्वाद से लैंड एक्वायर किए। वो लैंड तो पहले कुछ भी नहीं था,
और अभी आप जाओ तो वन ऑफ द बेस्ट गुरुकुल्स आप लोग वृंदावन में जाके देखेंगे। तो वी टेक हेल्प, राइट। वो जो भक्ति वेदांत स्वामी रोड है, मस्ट हैव टेकन सम हेल्प फ्रॉम लोकल, सो वी टेक हेल्प, बट अल्टीमेटली कृष्णा मटीरियली कोई व्यक्ति होता है वो भी हमें हेल्प कर रहा है कुछ एक्वायर करने में, लेकिन ऐसा कोई हम जब किसी कॉन्टैक्ट बनाते हैं और हमारा लैंड छीन ले तो हम क्या बोलेंगे, ये कोई कॉन्टैक्ट अच्छा है ना, समझेगा प्रभु जी इससे बात कर लो, ये अच्छा है, ये आपका प्रॉपर्टी हर लेगा तो प्रभु ये क्या बिजनेस, ये क्या रिलेशन है। एंड कृष्णा सेज आई एम सूर्यदा सर्वभूतानाम, आई एम द वेल विशर ऑफ एवरीबडी एंड इज टेकिंग अवे एवरीथिंग। व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस? इट्स व्हाई स्पिरिचुअल लाइफ इज बियॉन्ड लॉजिक। should logically understand this is beyond logic. We just can't do anything. We are helpless. The greatest of the devotees, Bhakti Vinod Thakur, वो क्या बोलते हैं, अमार जीवन सदा पापरत नाही को पुण्य रलेश। मेरा पूरा जीवन पापों से भरा है, आई हैव नो गुड क्वालिटीज, परेर उद्वेग दिया चाहिए कत, आई एम गिविंग डिस्ट्रेस टू अदर्स। नाउ ये दिस इज वेरी इलॉजिकल। व्हाई इज ही सेइंग लाइक दिस? भक्ति विनोद ठाकुर मेटीरियली इज अ मैजिस्ट्रेट, बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं और इतने उदार हैं, और वो बोल रहे हैं मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल लाइफ के जो क्वालिटीज़ हैं वो भौतिक विषयों से परे हैं, जो मटीरियलिस्टिक व्यक्ति समझ नहीं सकता स्पिरिचुअल लाइफ के। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि जब मेरे भक्त का सब कुछ कृपा करता हूँ, सब कुछ छीन लेता हूँ। मैं जब हमारे यहाँ पे पूना में निगड़ी में प्रीचिंग शुरू हुआ था, तो हमारे राधे श्याम प्रभु, वृंदावन प्रभु और मैं, हम 3 डिवोटीज़ यहाँ प्रीचिंग के लिए आते थे। वी वर लाइक यू कैन से पायनियर्स, है ना। पहले वृंदावन प्रभु, फिर मैं, और फिर राधे श्याम प्रभु आने लगे। तो हम लोग एक कंपनी में प्रीचिंग करते हैं ना, बजाज ऑटो ना, उसका भी टाइट नाम बदल दिया है शायद, सम फोर्स मोटर बोलते हैं उसको, नियर पिंपरी चिंचवड़। तो राधे श्याम प्रभु पहले वहाँ जॉब करते थे। तो प्रभु जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया बहुत सुंदर, वहाँ पे यंग स्टूडेंट्स आते थे और मेरे को इनवाइट किया, उन्होंने बोला आप लेक्चर दीजिए। तो मैंने एक लेक्चर दिया, तो उसमें एक लेक्चर में पॉइंट ये आया कि भगवान जब कृपा करते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। तो ये सब यंग ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर्स, GTE, जस्ट अभी M.Tech करके आए हैं और बहुत मेहनत से जॉब मिला है। टाटा में जॉब्स मिलना या बजाज में जॉब मिलना, यानी वो भी एक स्वर्गलोक के समान है ना बहुत पुण्य कर्मों के बाद ये फल मिलता है लेकिन अगर और भी अच्छे कर्म हो तो वो जॉब चला जाता है श्री राम प्रभु को जस्ट TCS में जॉब मिला है। प्रभु जी इतने खुश हो गए, बोले प्रभु जी मेरे को बेस्ट जॉब मिल गया, हर एक चीज़ में 15% डिस्काउंट मिल रहा है ना। लेकिन ये माया का ट्रिक है, बी केयरफुल तो मैं ये लेक्चर में बता रहा था कि व्हेन कृष्णा इज मर्सीफुल ही टेक्स अवे एवरीथिंग। आफ्टर द क्लास देयर वाज क्वेश्चन आंसर सेशन एंड वन स्टूडेंट ही सेड आई वांट टू टॉक टू यू प्राइवेटली, अकेले बात कर। सब चले गए। उसका फेस ऐसा लग रहा था कि किसी ने 4 थप्पड़ मार दिए। ही वाज सो डिसअपॉइंटेड। आफ्टर ग्रेट एंडेवर आई गॉट दिस जॉब, है ना। मेरे माता पिता गरीब थे, मेरे को ये जॉब मिला है, अच्छा जॉब मिला है, और अभी आपके प्रभु जी राधे श्याम प्रभु के बोलने पे मैंने जब शुरू किया सिंसियरली 16 माला। अब मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ भगवान कृपा करो कृपा करो, और आज आपने नाउ यू हैव टोल्ड दैट व्हेन द लॉर्ड इज मर्सीफुल ही विल टेक अवे एवरीथिंग। बताओ भाई कौन से मंदिर में जाऊँ तो मैंने उनको बताया, बहुत प्रेम से बोला एक्चुअली अभी आपके लेवल पे ना भगवान विशेष कृपा नहीं करेंगे नहीं तो जब बंद करने वाले थे ना। आप करते रहिए till you realize Krishna shows this mercy not to every Tom, Dick and Harry. ऐसे नहीं सबको ऐसी कृपा करते, to very very special devotee. Prabhupada could realize it and Prabhupada lost everything. Family members भी cooperate नहीं कर रहे। It's interesting that Prabhupada इतने महाभागवत भक्त हैं, practically लाखों लोग कृष्ण भक्ति में आए प्रभुपाद के प्रीचिंग से, लेकिन फिर भी प्रभुपाद के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके वाइफ हैं, वो उतने कोऑपरेटिव नहीं थे, है ना। ये तुकाराम महाराज का भी ऐसे कहानी है। तुकाराम महाराज भी बहुत
ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया मैंने. हरे कृष्ण. So, normal person cannot understand the mercy of the Lord. Generally people think mercy means getting material wealth. Dhanam dehi, rupam dehi. जैसे बाइबल में, नॉट बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन कई लोग चर्च में जाते हैं, गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, भगवान हमें कुछ दो. लेकिन यहाँ पे साफ बताया गया कि भक्त को मांगना नहीं चाहिए. ही इज फेथ दैट माई लॉर्ड प्लीज डू वॉट एवर इज नीडेड टू प्यूरिफाई मी. कुंती महारानी क्या प्रे कर रहे हैं? कुंती महारानी क्या प्रार्थना? व्हाट इज कुंती महारानी प्रेइंग? शी इज प्रेइंग, माई लॉर्ड लेट द कैलामिटीज कम अगेन एंड अगेन. For when the calamities come, I can remember you again and again. And remembering you means no longer remembering birth and death. भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो उसको अपना रिमेम्बरेंस देते हैं. What is the greatest wealth in the world? चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के साथ डिस्कस कर रहे थे कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है. नॉट मटेरियल वेल्थ, नॉट बिकमिंग बिल गेट्स और मुकेश अंबानी. सबसे बड़ी वेल्थ क्या है? राधा कृष्ण प्रेम जार सेई बड़ धनी. सबसे बड़ी धनी कौन है? जिसको राधा कृष्ण का प्रेम. इसीलिए यहाँ पर बलि महाराज इज फीलिंग सॉरी फॉर इंद्र. बलि महाराज इज फीलिंग सॉरी फॉर इंद्र कि क्या, मतलब काफ़ी he has spoken very strong words. Only Bali Maharaj can speak like this, नहीं? बलि महाराज इतना स्ट्रांग बोल रहे हैं. हाउ पिटिएबल इंद्र. कितनी दया आ रही है मेरे को इंद्र पे. अभी बलि महाराज को भगवान ने बांधा हुआ है, लेकिन बलि महाराज ज़्यादा एडवांस्ड है. और इंद्र को स्वर्ग का राज्य है, अप्सराएं डांस कर रहे हैं, गंधर्व डांस कर रहे हैं और सब लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं. बट ही इज कंसिडर्ड टू बी अनफॉर्चुनेट. So what is fortune and what is misfortune? Fortune मतलब सौभाग्य. कोई सोचता है सौभाग्य का मतलब है मेरे को एक संपत्ति मिल जाए, एक प्रॉपर्टी मिल जाए, कुछ लैंड मिल जाए, या मुझे अच्छी फैमिली लाइफ मिल जाए. लेकिन सौभाग्य, ये भी चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय में बोलते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑस्पिशियस एक्टिविटी, ग्रेटेस्ट फॉर्चून इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. भक्तों का संग. जिसको भक्तों का संग मिला है वही सबसे बड़ा वेल्थ है. व्हाट इज दैट वर्स, यू नो, तुल्याम लवेनाम अपि. हरी, दिस डिवोटीज वर डूइंग पीडीसी, दे नो मच बेटर देन मी. आई एम 35 years in ISKCON. very proud of having such wonderful devotees. हमारा फ्यूचर कितना अच्छा है ISKCON का. ये नए नए भक्तों को भी इतना अच्छा ज्ञान है. नए मतलब इस जन्म में नए. You graduated from which college, Prabhuji? BHU. Right. So I was also from BHU, but one generation. So Prabhuji spoke very nicely. Bhagavad first canto, I think, na? First canto में कि even one moment of association with a devotee cannot be compared to the greatest wealth. सबसे बड़ी बड़ी संपत्ति आप सोच सकते हैं, करोड़ों रुपए, स्वर्ग का राज्य, एक पर्टिकुलर लैंड, रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह. उसका कंपेयर करें एक सेकंड राधा वृंदावन चंद्र का दर्शन, या एक बार कोई वैष्णव के मुख से हरि कथा सुनना, या एक बार प्रभुपाद के बुक्स बांटना, या एक सेकंड भी, अगर एक सेकंड भी हरे कृष्णा मंत्र का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. होली नेम इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ. इसीलिए एक बहुत सुंदर भजन है जो प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था. व्हाट इज दैट वर्स, श्लोक है राधाकांत. गौरपह न भजिन मैंने, हाँ, सत्संग छाड़ी कहनु असतेर विलास. लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के ना, या नरोत्तम दास ठाकुर. गौरपह न भजिन में. What is speaking pitiable for Indra is for us also. ऐसा नहीं खाली इंद्र को बोल रहे हैं. कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य जीवन का पूरा उपयोग नहीं कर रहा, वो दयनीय अवस्था में है. मैं अपने बारे में सोच रहा था, मुझे तो कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं है,
लेकिन फिर भी कितने मिनट होते हैं दिन में बिता देता हूँ विदाउट रिमेंबरिंग कृष्ण. मेनी टाइम्स वी टॉक प्रजल्प, मेनी टाइम्स ऐसे ही कुछ चीज़ों में टाइम वेस्ट हो जाता है. दैट इज द ग्रेटेस्ट लॉस. चाणक्य पंडित सेज दैट अ मोमेंट लॉस्ट कैनॉट बी रिगेन्ड फॉर मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स. एक क्षण अगर चला गया, समझो मैंने 5 मिनट वेस्ट कर दिया और मैं बोलता हूँ प्रभु जी ये लो 5 लाख रुपए दे दो, मुझे 5 मिनट मिल जाए, वो नहीं मिल सकते. सो हियर बलि महाराज इज अ महाजन. बलि महाराज की क्वालिटीज क्या है? आत्मनिवेदन. भगवान ने सब कुछ ले लिया उनका. एक्चुअली बलि महाराज को पता था. बलि महाराज न्यू when Lord Vamanadev came, I think it was शुक्राचार्य who told him. शुक्राचार्य उसको बोल रहे थे कि मत दो, ये 3 कदम जमीन के बहाने सब कुछ छीन लेंगे. ही इज गोइंग टू टेक अवे एवरीथिंग. प्रभुपाद एक बार बहुत सुंदर लेक्चर में बोलते हैं. तो बलि महाराज सेड, ओ इफ इज विष्णु देन एवरीथिंग बिलोंग्स टू विष्णु, सो व्हाई नॉट गिव टू विष्णु. सब कुछ भगवान विष्णु का ही है, और भगवान विष्णु मांग रहे हैं तो अच्छा ही है. एंड यू आर माई गुरु एंड यू आर टेलिंग मी नॉट टू गिव अप फॉर विष्णु, यू आर आस्कल गुरु. प्रभुपाद यूजेस द वर्ड. आप कैसे गुरु हो? गुरु का मतलब है जो अपने शिष्य को ये सिखाता है कि कैसे कृष्ण भक्ति करनी. गुरु न सस्या जननी न सस्या. इसलिए बलि महाराज ने अपने गुरु को रिजेक्ट कर दिया. उनके गुरु शंकराचार्य बोल रहे हैं कि मत दो, ही इज वामन देव इज गोइंग टू चीट यू. बट बलि महाराज बोले नो प्रॉब्लम, लेट हिम टेक. एंड ही वाज सरेंडर्ड. ही इज वेरी हैप्पी. ही इज नॉट लैमेंटिंग, अरे धोखा हो गया, मेरे गुरुजी ने करेक्ट बोला था, मैंने क्यों चेक साइन कर दिया. आई सरेंडर्ड. देयर इज नो लॉस. व्हेन अ डिवोटी सरेंडर्स टू कृष्ण देयर इज नो लॉस. ही गेन्स मिलियंस ऑफ टाइम. एक फेमस स्टोरी है दैट फ्रूट वेंडर, कृष्णा बुक. वो एक कहानी, एक फल बेचने वाली आती है और कृष्णा कुछ अनाज के दाने देते हैं, और कृष्णा जो अनाज के दाने दे रहे हैं वो बहुत छोटे से हैं, है ना, छोटे छोटे, इतने उनके हाथ से गिर रहे हैं. और वो फल बेचने वाली कैलकुलेट नहीं कर रहे, अच्छा कितने अनाज दिए तो मैं इतना फ्रूट्स, इतना आई एम सॉरी, कितने अनाज दिए मैं इतने फ्रूट्स दूंगी. शी गेव अप एवरीथिंग. We have to become free from calculative mentality. When we surrender to Krishna, one should not calculate, should simply surrender wholeheartedly. इसके बारे में बहुत सुंदर भजन है जो कल शाम को मैं पढ़ रहा था, भक्ति विनोद ठाकुर सॉन्ग. आत्मनिवेदन तुया पदे कोरी होई नु परम सुखी. ओ माय लॉर्ड, नाउ आई हैव सरेंडर्ड टू यू, आई हैव बिकम हैप्पी. मैं परम सुखी हो गया. दुख दूरे गेला चिंता न रही. अब मेरे सारे दुख दूर हो गए, चिंता नहीं रहा. क्यों? सब में कृष्ण का हाथ देखना. So devotee, he accepts even sufferings as a mercy of the Lord. Because sometimes Krishna test, कभी कभी कृष्ण परीक्षा लेते हैं. अभी मैं खराड़ी में था 2-4 दिन पहले, और हमारे जिस कैसे कृष्ण का प्लान होता है, मैं वहाँ पर गया और एक डिवोटी हैं, उनके मदर लास्ट स्टेजेस में थे. हम भक्तों ने कुछ कीर्तन किया और एक्चुअली उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी. तो डिवोटीज़ को लग रहा था कि अभी एज आ गई है, मे बी इट्स गुड फॉर हर टू गो. तो कीर्तन के बाद जस्ट नेक्स्ट डे शी लेफ्ट. और हम आज सब भक्तों से रिक्वेस्ट करें, उनके लिए प्रे करें. बहुत वेल विशर थे. उनके फैमिली मेम्बर्स कई वृंदावन में सेवा कर रहे हैं फुल टाइम. और नेक्स्ट डे हमारे सुध गोसाई प्रभु जी ब्रह्मचारी वो उनके यहाँ कीर्तन करने गए. कीर्तन करके लौट रहे थे, उनके बॉडी मतलब राइड्स के बाद, और सडनली उनका ऑटो रिक्शा से एक्सीडेंट हो गया. बिकॉज कृष्णा प्रोटेक्टेड हिम, तो फेल ऑन अ ऑटो रिक्शा. डॉक्टर तो पहले बता रहे थे कि सब दांत वगैरह सब फ्रैक्चर हो गए, बट बाय कृष्णाज मर्सी हल्का सा चोट लगा. अभी भी पेन है. मैं उनको बोल रहा था आपको पेन होगा, आप रेस्ट करिए. बोले नहीं नहीं, आई डिजर्व टू सफ़र मोर. कृष्णा जस्ट गिव मी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कर. तो डिवोटी का विजन ये रहता है कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है. चौदी के आनंद देखी. सब जगह आनंद का मतलब ये नहीं कि डिवोटी को कोई तकलीफ नहीं आती.
लेकिन वो तकलीफ में भगवान का हाथ देखता है. He sees as the mercy of the Lord. This consciousness is what is Krishna consciousness. ये प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक है. तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृताम विपाकम हृद्वाग बपूर बीर विदधान नमस्त. One who with folded hands he prays to Lord, oh my Lord, thank you for all the sufferings and the miseries. हे प्रभु, आपके द्वारा जो भी दुख आ रहे हैं वो आपकी कृपा है. एंड हृदवाग बपूर भी thanking from the heart. Such a person is fit to go back to Godhead. So Bali Maharaj is one of the 12 Mahajans because he is teaching us Atma Nivedan. बली महाराज हमें सिखा रहे हैं आत्मनिवेदन. इनफैक्ट एक बार प्रभुपाद 12 महाजन के नाम बता रहे थे. स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, बलिर, व्यासकीर वयम. तो एक डिवोटी ने हाथ ऊपर किया. प्रभुपाद 12 नाम होते. प्रभुपाद यू आर 13th. आप 13th हो. प्रभुपाद looked at him and said, you are 14th. Mahajan means following Mahajan. There is no need for innovation. Just to follow the great souls. यहाँ पर प्रभुपाद पर्पट में बहुत सुंदर पॉइंट बता रहे हैं कि कैसे बली महाराज is lamenting for Indra that you have asked the Lord for very small things. जैसे मान लो कि मुकेश अंबानी के पास जाता है टेम्पल के लिए डोनेशन मांगने के लिए और वो कुछ भी देता है. उसके लिए 1 करोड़ देना ऐसे जैसे मेरे लिए 10, आपके लिए 10 रुपये देना है ना. उसके लिए 1 करोड़ से जो जेब को हिलाया तो 1 करोड़ गिर जाते हैं. सो मच ही हैज़. बट आप जाके बोलते प्रभु जी अभी हमारा नया प्रोजेक्ट है या टेम्पल में डीटीज़ के, जैसे अभी यहाँ प्रभुपाद को गोल्ड के ऑल्टर के भी होने वाला है, मैंने सुना ऐसे. तो बोले प्रभु जी उसके लिए थोड़ा आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए. कितना चाहिए? 1000 रुपये दे दो. 1000 रुपये की अब इतने बड़े आदमी मांगना मूर्खता ही है. तो भगवान से मांग रहे हैं कि मुझे भौतिक ऐश्वर्य मिलना, ये मूर्खता है. ध्रुव महाराज का भी ऐसे था. ध्रुव महाराज वांटेड मटेरियल ऑपुलेंस. पहले वो मटेरियल चाहते थे कि मेरे को पिताजी का राज्य मिले. लेकिन जब भगवान आ गए सामने, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचेत, आई डू नॉट वांट एनीथिंग. द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज होली नेम ऑफ कृष्णा एंड अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्णा एंड हिज डिवोटी. हरि नाम लेना ही सबसे बड़ी संपत्ति है और भक्तों की सेवा. प्रेम धन, प्रेम धन, दिस वेल्थ. चैतन्य महाप्रभु जब नरोत्तम दास ठाकुर के अपीयरेंस से पहले वो एक पद्मा नदी में स्नान करते हैं और पद्मा नदी को बोलते हैं कि मैं अपना धन दे रहा हूँ, एक वेल्थ. अब नरोत्तम आएंगे उनको दे देना. जैसे किसी के लिए एफडी रखते हैं कि मैं रख रहा हूँ, अब उसको कैश देना. तो नरोत्तम दास ठाकुर जब स्नान करते हैं उसमें, तो चैतन्य महाप्रभु उसको प्रेम धन देते हैं. सो दिस इज व्हाट अ डिवोटी हैंकर्स फॉर. हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ अभिलाषा होता है. नहीं, जैसे आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेंगे या कोई तो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर एम्बिशन. नहीं, कई लोग लिखते हैं मेरा एम्बिशन है मैं IAS ऑफिसर बनूंगा. कोई लिखते हैं मेरा एम्बिशन है मैं इंजीनियर डॉक्टर बनूंगा. एक डिवोटी का एम्बिशन क्या है? आई जस्ट वॉन्ट टू सर्व द लॉर्ड. बर्थ आफ्टर बर्थ. न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतत् भक्तिर. मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंहदेव ने बहुत टेम्प्ट किया. प्रहलाद मांगो, वरदान मांगो. प्रहलाद बोले नहीं, मला नहीं पाइए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. कुछ तो ले लो आप. नहीं चाहिए. भगवान अगर मैं कुछ लूँगा तो मैं व्यापारी हो जाऊँगा. जैसे कोई कुछ करता है बदले में कुछ चाहता है. मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा चाहिए. अगर आप देना चाहते हो एक चीज़ दे सकते हो. व्हाट डिड प्रहलाद आस्क फॉर? वन थिंग, service to devotees. But before that he asked one thing, apparently material, not material, but he asked for liberation of his father. मेरे पिताजी श्रीमान हिरण्यकशिपु प्रभु. इंटरेस्टिंग है ना, प्रभुपाद के समय एक ड्रामा हुआ था. यू हर्ड दैट स्टोरी? एक बार ड्रामा हुआ था और ड्रामा में एक डिवोटी हिरण्यकशिपु बने थे. ऑब्वियसली सब तो प्रहलाद नहीं बन सकते. तो प्रभुपाद लेक्चर के बाद बोले श्रीमान हिरण्यकशिपु की जय. अब प्रभुपाद बोले आई लाइक द ड्रामा स्पेशली मिस्टर हिरण्यकशिपु.
क्योंकि हिरण्यकशिपु के रोल के कारण ही तो भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। अभी हिरण्यकशिपु ने कितने बुरे कार्य किए, टॉर्चर किया, उनको पर्वत से फेंका, जहर दिया। अभी आपके साथ ऐसा करोगे तो आप क्या प्रे करोगे? अभी एक डिवोटी ने मेरे प्लेट से रसगुल्ला उठाया था, अभी तक याद आ रहा है मुझे। तो मेरे मन में वेंजियंस की भावना होती है कि ही स्टोल माय रसगुल्ला, 1 year 5 months back, वी आर सो सेंसिटिव। और somebody insults you, रसगुल्ला उतना मुश्किल नहीं है त्यागना, लेकिन इंसल्ट होते हैं ना, वर्बल और मेंटल इंसल्ट, इट इज वेरी पेनफुल। इसलिए हमें किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। बाइबल में बोला गया, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। बट सी हरिदास ठाकुर वाज इंसल्टेड, कोई इंसल्ट, मुंह पे गालियां दिए गए, थूका गया, और वो प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान माफ करो। प्रहलाद महाराज अपने पिताजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, अभी शायद हमारे में से कोई तो प्रार्थना करते, भगवान उसके लिए एक स्पेशल नरक बनाओ, ये एग्जिस्टिंग नरक इनफ नहीं है उसके लिए कस्टम मेड करो, बट प्रहलाद इज प्रेइंग, प्लीज फॉरगिव माय फादर। तो दिस फॉरगिवनेस इज अ वेरी ग्रेट क्वालिटी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यू कैनॉट फॉरगिव until you are tolerant. So one can know the greatness of a person by his ability to tolerate. कितना सहनशील है, कितना नम्र है, वही महानता का लक्षण है। कई बार हम प्रचारक बनते हैं तो हम बहुत अभिमान हो जाता है, मैं इतना अच्छा लेक्चर दे रहा हूँ, मैं इतना प्रीचिंग कर रहा हूँ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में टॉप स्कोर प्राप्त किया है। सतीश प्रभु इज वन ऑफ द टॉपर्स, सतीश प्रभु। बट वॉट ही डज इज, आई विल टेल हिज, बताऊँ ना सबको सीक्रेट, बता दिया ऑलरेडी। What he does, he will distribute books and he will not tell his name. He will give the score to others. It's very rare. Generally क्या होता है, कंपटीशन होता है। जब हमारे राधा गोपीनाथ टेम्पल में बहुत साल पहले जब टेम्पल शुरू हुआ था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में कंपटीशन होता था, मैं भी था कंपटीशन। एवरीबडी वुड वांट दैट मेरा हरि बोल होना चाहिए, हाईएस्ट स्कोर। तो क्या 2 भक्तों में कंपटीशन था। तो एक क्या किया, सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नो प्रसादम के लिए आना नहीं, पैक करके ले जाना, रेस्ट करना है वहीं रेस्ट करो, और ओपन एयर टॉयलेट्स बहुत है, नो बडी वुड कम बैक। तो 1-2 डिवोटी में कंपटीशन था। तो एक डिवोटी है वो 106 भगवत गीता बांट के आ गए और वो रात को 9:30 बजे सो गए। और दूसरे डिवोटी वो वेट कर रहे थे और वो आए और उन्होंने 108 किया और फिर आके सो गए। लेकिन जो पहले सोए थे ना, वो सोए नहीं थे। वो तुरंत उठे, 4 गीता और करके आ गए। आई विल नॉट टेल नेम्स। तो एक ही होता है कि आई शुड बी द टॉप, दिस इज भक्ति ऑल्सो, बट देयर इज अ मिक्सचर ऑफ रिस्पेक्ट और, बट रियल मीन्स टू डू सेवा एंड गिव क्रेडिट टू अदर्स, वो बहुत मुश्किल है। सेवा करें और दूसरों को क्रेडिट मिले। और उससे भी मुश्किल क्या है कि अगर कोई गलती हो जाए तो किसी और ने गलती की हो और आपके ऊपर ब्लेम आए, दैट इज अनदर टेस्ट। मेनी टाइम्स होता है, इंस्टीट्यूट में होता है कि वी आर एक्चुअली डूइंग प्रॉपरली, इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट, बट ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग और पावर ऑफ कली एट इवन हाई लेवल्स, बहुत हाईएस्ट लेवल पर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो एक बार एक भक्त ने पूछा था कुछ ऐसे, कुछ आप जानते हैं सोसाइटी में होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो एक भक्त ने पूछा महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज, कि आपके बारे में ऐसा बोला है, आप अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं करते, शुड डिफेंड योर सेल्फ कैसे। तो महाराज बोले, कृष्णा नोज द हार्ट, इफ इट इज नेसेसरी आई विल डिफेंड, बट जरूरत नहीं, मेरी सेवा पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर आपके विरुद्ध कोई गलत बोला गया है और अगर आपकी सेवा में प्रभाव नहीं पड़ रहा तो बताने की क्या जरूरत है। कृष्णा नोज, और इनफैक्ट प्रेज एंड ब्लेम, आउट ऑफ द 2 प्रेज इज मोर रिस्की इन भक्ति देन ब्लेम। बहुत कम लोगों का फॉल डाउन होता है क्योंकि कोई निंदा की गई हो। मराठी में बोलते हैं ना कि निंदकाचे घरी असावे शेजारी, आई नो लिटिल मराठी ऑल्सो। मेरे जो निंदक करते हैं उस साथ में, समझो कोई पॉइंट कर रहा है कोई गलती, अगर वो सही बोल रहा है तो अच्छा ही है, और गलत भी बोल रहा है तो फर्क क्या पड़ता है, नहीं, इट डज नॉट अफेक्ट आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। So devotee is very eager to glorify others and accept blame, even if it is not there. हरिदास ठाकुर को ब्लेम किया गया, उनको मार्केट में मारा गया और बाद में नवाब ने माफ़ी मांगी
तो हरिदास बोले नहीं नहीं आपकी गलती नहीं है, मैंने कोई अपराध किया तो उसका फल है. So, and it's getting time. I will come to the end part of offering prayers. What to ask for? क्या मांगना चाहिए भगवान से, वो गौर लीला में. अभी तक मैंने गौर लीला बोला नहीं आज, फॉर अ चेंज. और वो आता है चैतन्य भागवत में, विच इज़ दैट फेमस पास टाइम सर्वलक्षण प्रभु, जहाँ पे गौर लीला में सारे भक्त भगवान से वरदान मांग रहे. महाप्रकाश लीला, या महाप्रकाश लीला में चैतन्य प्रभु खुद बैठ गए, आई एम विष्णु, मेरी पूजा करो, मेरे को भोग ले आओ. हजारों केले खा लिए, हजारों मटके दूध के पी लिए, हजारों मटके दही भी एक साथ लेके आए. पता नहीं कैसे दूध दही, आयुर्वेद कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप. महाप्रभु के लिए कोई ट्रेडिशन का प्रॉब्लम नहीं है. और फिर भगवान, एक माता जी थे, वो अभिषेक में हेल्प कर रहे थे. महाप्रभु ने पूछा व्हाट इज योर नेम? हर नेम वॉज दुखी. तो महाप्रभु बोले आज से आपका नाम होगा सुखी. फिर भगवान एक एक करके सब डिवोटीज की इच्छाएं पूरे करते. मैं शॉर्ट में एक एक लाइन में 5 भक्तों के बारे में बताऊंगा क्या मांगते. फर्स्ट डिवोटी इज हरिदास ठाकुर. हरिदास, हरिदास, आपको याद है जब आपको 22 मार्केट में पीटा जा रहा था, मैंने अपना चक्र भेजा, सुदर्शन चक्र, आपकी रक्षा करने के लिए. और सुदर्शन चक्र हजारों सूर्य के समान चमकी और हरिदास को बचाने के लिए आए. लेकिन हरिदास ठाकुर ने चक्र को रोक दिया. प्रभुपाद जी बोलते हैं द मर्सी ऑफ अ डिवोटी इज मोर पावरफुल देन द एंगर ऑफ गॉड. भगवान के गुस्से से भी ज्यादा भक्त की कृपा है. अगर भगवान भी गुस्से हुए तो भक्त माफ कर सकते हैं, लेकिन भक्त गुस्से हुए तो कोई भी नहीं माफ कर सकता. जब अम्बरीश महाराज की कहानी में दुर्वासा मुनि पूरी इंटरनेशनल फ्लाइट में जाते हैं ना, लेकिन अंत में वो शरण में आते हैं अम्बरीश महाराज. हरिदास ठाकुर को बताया भगवान ने, मैंने आपको बहुत चक्र भेजा लेकिन आप नहीं स्वीकार किया. फाइनली हाउ डिड लॉर्ड चैतन्य प्रोटेक्ट हरिदास ठाकुर? कैसे रक्षा की? अपने शरीर से ढक दिया. आस्क फॉर अ बून, व्हाट डू यू वांट? व्हाट डिड हरिदास ठाकुर आस्क फॉर? हरिदास ठाकुर ने क्या मांगा? He said, my Lord, I am not able to remember you. Unfortunately, I am very much attached to being recognized by others. मुझे दूसरों के प्रति आदर भावना ज़्यादा है. हरिदास ठाकुर बोले प्रभु मैं आपको याद करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट दैट आई शुड रिमेंबर यू इंटेंसली. एंड ही गेव 3 एग्जाम्पल्स. 3 उदाहरण दिए. कौन से 3 उदाहरण दिए इंटेंस भगवान को पुकारने के? क्लासिकल एग्जाम्पल्स. द्रौपदी की जब बेइज्जती हो रही थी तब उसने पुकारा हे कृष्णा हे गोविंद. भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया कि भगवान बोलते हैं जब द्रौपदी ने मुझे पुकारा तो मैं उसका ऋणी हो गया. आई बिकेम इंडेटेड. Whenever you chant sincerely, Krishna becomes indebted to you. Next week, Nirjala Ekadashi आ रही है. It's the most dear day for all devotees. सब devotees तरस रहे हैं, कबे हबे बोलो निर्जल अमार. We don't have to go to the Prasadam hall. We can just relish feast here, holy name. How many devotees will be here for Ekadashi? Practically everybody will be here. So we should try to chant as much as possible and get mercy. भगवान का अरेंजमेंट है इस बार एकादशी के जस्ट बाद चिड़ा दही फेस्टिवल है. जनरली एक दिन का गैप होता है, सिर्फ ब्रेकफास्ट विद चिड़ा दही. राधाकांत प्रभु विल बी इन वृंदावन. आई एम वेरी ग्रेटफुल. मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द कोरोना सीजन आई वॉज इन वृंदावन एंड देयर वॉज नॉट प्रॉपर फैसिलिटीज. प्रभु जी मुझे गुरुकुल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिए. वेरी ग्रेटफुल टू हिम. वी चैंटेड. हम निर्जला साथ में ही थे ना प्रभु जी 2 साल पहले 2020 में. Actually, Ekadashi is a great blessing, but Nirjala is even more blessing. But Haridas Thakur, what did he ask for? Said, I want to cry out like Draupadi. 2 examples of crying out. एक तो जब दुशासन जब उसकी इंसल्ट करने का प्रयास कर रहा था, और सेकंड दुर्वासा मुनि अक्षय पात्र. द्रौपदी प्रसाद ले चुके थी और दुर्वासा मुनि आ गए छोटे से ग्रुप के साथ. How many people were there? 10,000. अभी आप हमारे किचन इंचार्ज कौन है? कृष्ण. हाँ उसको जरा बोल दो कि आज 100 लोग आ रहे हैं.
तो आपको अभी बताया तो कोई बात नहीं, बट अगर 12 बजे बताया तो ही विल गिव यू ग्रेट ब्लेसिंग्स। तो दुर्वासा मुनि, इसलिए दुर्वासा मुनि को बुलाया नहीं हमने एनवीसीसी में अभी तक, है ना, क्योंकि वो 60,000 लोगों को लेकर आ जाए। तो द्रौपदी सिंपली क्राइड आउट, कृष्णा कृष्णा, एंड कृष्णा अपीयर्ड एंड सेड गिव मी, आई एम हंग्री। द्रौपदी बोली मैंने आपको बुलाया क्योंकि हमारे प्रसाद नहीं है, तो कुछ तो होगा। तो फाइनली एक राइस का पार्टिकल, सम से राइस सम से शाक, और कृष्ण ने खाया, दुर्वासा मुनि एंड कंपनी सब संतुष्ट हो गए। दैट थर्ड एग्जाम्पल ही गिव्स, विच आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज, समबडी कैन ट्राई। थर्ड एग्जाम्पल है कि वंस पार्वती वॉज सराउंडेड बाय विचेस। किसी ने पढ़ा है एग्जाम्पल? इट इज देयर इन द बुक ना, चैतन्य भागवत। पार्वती को विच राक्षसी ने घेर लिया। आपको पता है कहानी? भुवनेश्वर में एक कहानी है ना, कि कैसे वो पार्वती ने असुरों का वध किया है ना, भुवनेश्वर महात्मा में आता है। एनीवे, तो पार्वती ने भगवान को पुकारा। 3 एग्जाम्पल्स। लास्ट, व्हाट वाज हरिदास ठाकुर एम्बिशन? श्री राम प्रभु क्या मांगा हरिदास ठाकुर ने? कि मैं भक्तों के घर में कुत्ते का जन्म लूं, so I can get the महाप्रसाद। Then Lord Chaitanya called for मुरारी। मुरारी, मुरारी को कौन सा रूप दिखाया उन्होंने? सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान नहीं दिखाया, क्योंकि मुरारी गुप्ता खुद हनुमान बन गए। सडनली मुरारी गुप्ता उठे, उनके पीछे पूछते, ये ना, कैन यू इमेजिन कैसा लगेगा ये ना? And Lord Chaitanya asked Murari, what do you want? Do you remember you are the one who crossed over the ocean and burned the city of Lanka? Ask for a benediction. आप वरदान मांगो। तो क्या वरदान मांगा उन्होंने मनमोहन प्रभु? क्या वरदान मांगा? Anybody knows? मुरारी गुप्ता आयुर्वेदिक डॉक्टर, उसने नहीं बोला मेरे को लंबा भाया बड़ा क्लिनिक बना दो, मेरे पेशेंट्स 1000 पेशेंट्स हैं। What did he ask? I want the association of those devotees who know that you are the master and they are the servants. मैं भक्तों का, दासों का दास बनना चाहता। और नेक्स्ट, और किसको बुलाया भगवान ने? अद्वैता, अद्वैता वरदान मांगो। What did अद्वैताचार्य ask for? अद्वैताचार्य ने क्या मांगा? महाभारत में आपने विश्वरूप दिखाया था, किसको? अर्जुन को वो विश्वरूप दिखा, और उस समय विश्वरूप मैनिफेस्ट हो गया। और अद्वैताचार्य और साथ में नित्यानंद प्रभु और विश्वरूप डांस करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नेक्स्ट कौन बज गए? 2 बज गए केस। श्रीधर, श्रीधर, सब लोग बेचारी बोले श्रीधर को बुला लिया। बोले श्रीधर पता नहीं, आश्रम में नहीं है, पता नहीं वो गेस्ट हाउस में नहीं है, सेवा स्थान में भी नहीं, कहाँ पर है? हाउ डू यू नो वेर इज श्रीधर? कैसे मालूम पड़ेगा? यहां पे हरि नाम की आवाज आ रही होगी, हरि 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 हरि। सब ढूंढते ढूंढते गए, जंगल में श्रीधर का आश्रम था। आश्रम में गृहस्थ डिवोटी, बहुत गरीब थे, उनके घर में होल्स, पानी गिरता था, और उनके कपड़े कैसे थे? डिजाइन थे, क्योंकि जहां फट जाता वो गांठ बांध देते, इससे वो सिलाई नहीं करते थे। ये ना, वो हमारे संवर्धन आश्रम में भी आते हैं नहीं मांगने के लिए नया धोती कुर्ता, वो जो भी है नोट बांध जाते। नहीं, ऐसा सब लोग करें तो आपका लोड कम हो जाए। नहीं प्रभुपाद वुड से लाइक दैट। प्रभुपाद के पास एक चप्पल थी, जो एक बार एक बंदर ने काट ली थी। यू नो दैट स्टोरी? प्रभुपाद बंदर, एक चप्पल बंदर ने ले ली थी, प्रभुपाद वापस लिए बंदर से, उसको फिर यूज़ किए। अब प्रभुपाद डांट रहे थे अपने अमेरिकन भक्त, आप लोगों को आदत है सब नया नया लेने की, लेकिन आपको वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो श्रीधर ने क्या वरदान मांगा? श्रीधर को कौन सा रूप दिखाया भगवान ने? कृष्ण बलराम, यस, कृष्ण बलराम, और वृंदावन, और चर्पिंग ऑफ द बर्ड, गायों की आवाज। एंड ही सेड, श्रीधर आस्क्ड, आई डू नॉट वांट एनीथिंग, कुछ तो मांगो। नहीं, मैं आपको राज्य दे देता हूं, एक पूरा गांव, आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अष्ट सिद्धि देता हूं। और फाइनली श्रीधर टोल्ड लॉर्ड, प्लीज बी पीसफुल। जनरली भगवान भक्त बोलते हैं ना शांत रहो, भक्त भगवान प्रभु शांत रहो जाना। Lord said, I am peaceful, but you asked for something. And Sridhar asked for one great thing. What did he ask? जोर से बोली।
वो जो बालक निमाई है जो मेरी दुकान पे आते थे बार्गेनिंग करने, बार बार आता रहे। नेक्स्ट लास्ट 2 केसेस हैं जिनको भगवान ने बोला मैं कृपा नहीं दूंगा, और फिर दिए। श्री राम प्रभु, उसके पहले मुकुंद, मुकुंद को बुलाओ, देखो दरवाजे के पास खड़े हैं, उसका नाम भी मत लो, रास्कल। हाँ, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। वैष्णव में बोलेंगे भक्ति श्रेष्ठ है, और कॉलेज में आएंगे बोलेंगे साइंस श्रेष्ठ है ना। गौरभक्त प्रभु और के भाई बीएससी कर रहे हैं ना। मैं इसके बारे में बोलूं तो एंडी इनकी महिमा के। कल प्रभु जी गए थे और उनको एग्जाम करना था, और उनको ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था क्योंकि वो मेरे साथ रहते हैं, मेरी तरह नेचर है ना। और एक्चुअली प्रभु जी गए और उनको आंसर नहीं मालूम था, वो बस बैठ के हरे कृष्णा मंत्र ही जप कर रहे थे। अब भगवान की दया से, अभी कैसे दया बता नहीं सकता मैं, लेकिन सारे आंसर्स आ गए। So certain things cannot be spoken yet. तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसको कभी बिकॉज मुकुंद दत्त was associating with Mayavadis. So finally Lord Chaitanya said, कृपा नहीं मिलेगी। मुकुंद दास started crying, my Lord, when will I get mercy? कब कृपा मिलेगी? मुकुंद ने क्या जवाब दिया? Sorry, Lord Chaitanya, what did he say? He will get mercy after 10 million births. मतलब कितने जन्म के बाद? 1 करोड़। और मुकुंद was dancing, I will see my Lord only after 10 million births. हरि बोल। अभी आपको बोलो कि 10 मिलियन जन्म के बाद आपका पीडीसी खत्म होगा। सबसे पहले युगल श्याम प्रभु भाग जाएंगे, कुंज बिहारी में जाएंगे। ऑलरेडी ये पीडीसी लीडर बनना यानी एक पिताजी बनने की तरह है ना। ऑलरेडी 38 चिल्ड्रन हो गए, सबका हिसाब रखो, कौन क्या करना है, कौन कहाँ सोएगा, कहाँ खाएगा, क्या सेवा करेगा। एक बार जयदत्त महाराज को किसी ने पूछा, जयदत्त महाराज हाउ यू आर नॉट इन मैनेजमेंट, आप जीबीसी भी नहीं हो, नहीं हो। वो बोले कि पिछले जन्म में मैंने बहुत कुएं खोदे थे, पेड़ लगाए थे। So Mukund Dutt was so happy that my Lord, I will see you. And Lord Chaitanya said, bring him immediately. No, my Lord, after 10 million births. No, bring him immediately. Lord said, all your offenses are forgiven. सब अपराध माफ। और मुकुंद दत्त ने क्या वरदान मांगा? सर्वरक्षण प्रभु क्या वरदान मांगा? He said, I am seeing you, but seeing you is not enough. मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आपका दर्शन तो, नरसिंह भगवान का पहला दर्शन किसने किया? प्रीमियम शो, फर्स्ट दर्शन हिरण्यकशिपु, उनकी शरण में नहीं आए। भगवान वराहदेव को सबसे पहले किसने देखा? हिरण्याक्ष ने, बट दे डिड नॉट सरेंडर। कुब्जा ने भगवान को देखा, सब अर्पण किया, और वो धोबी था, धोबी भी मथुरा में था, लेकिन धोबी ने कपड़े नहीं दिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस? दे आर सीइंग द सेम पर्सन बट कॉन्शियसनेस। So I want service attitude. Do not try to see Krishna, but try to serve Krishna in such a way Krishna wants. So he prayed for service attitude. And Lord blessed him. He said, जब जब मैं आऊंगा तब तब आप भी अवतार लोगे, और आप मेरे फेवरेट गायक होगे, और जो भी आपके कीर्तन को सुनेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और लास्ट कौन बच गया? अच्छी बात। 5 मिनट लेट हो गया, लेकिन लास्ट टाइम युगल श्याम प्रभु डिसअपॉइंट हुई थी। आई एम कवरिंग अप लास्ट 2 classes ऑल्सो। एंड जस्ट इट हैपेंड विद महाराज लास्ट, यू रिमेंबर संडे क्लास ना। बट आई लर्न इन 3 minutes। और वो है शची माता। क्या शची माता का क्या प्रॉब्लम था? वाई शची माता वॉज नॉट गेटिंग मर्सी? अपराध किया था किसके विरुद्ध? और क्या ऐसे नहीं है कि अद्वैताचार्य के विरुद्ध कोई ब्लॉग डाला था वेबसाइट के ऊपर, या उसको फेसबुक पे नेगेटिव कमेंट्स डाले थे, या भागवतम क्लास में, या प्राइवेटली। कई बार लोग निंदा प्राइवेटली करते हैं। मालूम है क्या हुआ? वो डिबेट से बोलना मत किसी को, हाँ, और वो घूम के उसी के पास आ जाता है। यस प्रभु, व्हाट वाज द अपराध? हाँ, विश्वरूप बचपन से अद्वैताचार्य का बहुत संग करते थे। जैसे अभी आपको पीडीसी में इंटेंस है ना साधना, वैसे ही वो करते थे। अगर आप ये इंटेंस साधना करते रहोगे ना, बहुत डेंजरस है।
आपके सारे भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाएंगे, हाँ? और फिर आप बस भगवान के लिए प्रेमी बन जाए। जनरली ब्रह्मचर्य लाइफ में ऐसे होता है, पहली शुरुआत में बहुत इंटेंस होता है, फिर थोड़ा फ्रीडम मिलने के बाद प्लेटो बन जाता है। सो यू शुड मेक श्योर, यू शुड मेंटेन दिस इंटेंसिटी थ्रू आउट योर लाइफ, not only when somebody is watching you, because Krishna is always watching you. कृष्णा जो एक्चुअल भगवान है वो देख रहे हैं सबको, हर मोमेंट प्रेशियस। तो शची माता की गलती मानसिक अपराध था। अद्वैत, ही इज नॉट अद्वैत, ही इज द्वैत में, ये कपटी है। मेरा एक बेटा तो ज्वाइन हो गया आश्रम में विश्वरूप, और कहीं विश्वम्बर भी ज्वाइन नहीं हो जाए, ये अपराध की भावना थी, मेंटल ऑफेंस। यशोदा माता भी अपराध करे तो उसको भी थोड़ा रिएक्शन आ सकता है। लॉर्ड चैतन्य सेड, आई कैन नॉट गिव मर्सी, शी हैज ऑफेंडेड अद्वैत आचार्य मेंटली। So what is the solution? Shiv Prabhu, what is the solution? Take dust from Advaita Acharya's lotus feet. अद्वैत आचार्य के पास गए, बोले कि कृपा दिखाओ थोड़ा चरणों की धूल। किसको चाहिए? यशोदा, शची माता। ओह शी यशोदा, वही देवकी है, वो कौशल्या है, और वामन देव की लीला में अदिति है, तो मैं उसको धूल नहीं दे सकता। ऐसे बोलते बोलते बेहोश हो गए, उनकी धूल लेके शची माता को दी, और लेके वो भी बेहोश हो गए, और ये सुन के आप भी होश में आ गए। So already I've crossed 10-15 minutes. Let us pray that we can pray like what the great devotees are praying. From the core of the heart, हृदय से 1-2 मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करो कि हम एक बार ये प्रे बोल सकें। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहित। My Lord, I do not want anything. I just want to serve you birth after birth. मैं आपकी सेवा करनी जन्म जन्मांतर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Just 2 minutes, I'll request Radhakant Prabhu to speak some kind words. Radhakant Prabhu is a very senior devotee, disciple of Srila Gopal Krishna Maharaj, and he's one of my best friends in the entire ISKCON society. प्रभु थोड़ा सा कुछ बोलेंगे? Just in our प्रभु जी अजय कोविल प्रभु, उनके सन इन लॉ हैं, and very तरुण मोहन प्रभु, you know ना, तरुण मोहन प्रभु, तरुण प्रभु's brother-in-law. You like to say something, Radhakant? Any comments, questions? जय श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।